السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم التجوید کورس کے سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسا کہ ہم کچھ ضروری فوائد پڑھ رہے ہیں تحفۃ القاری سے، تو اس میں سے آج ہمارا فوائد کے طور پہ آخری سبق ہے وقف اور سکتہ کا بیان۔ ٹھیک ہے، وقف اور سکتہ، وقف کا معنی بھی ٹھہرنا ہی ہوتا ہے اور سکتہ کا معنی بھی ٹھہرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ٹھہرنے کا طریقہ مختلف ہے دونوں میں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی فرق پڑھیں گے۔ ٹھیک، تو دیکھیے، وقف یعنی ٹھہرنے کا بیان۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جس طرح قرآن مجید کے حروف اور اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وقف اسی قاعدہ اور طریقے کے مطابق ہی کیا جائے جس طرح سے قراء اور اہل زبان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقف کرتے وقت سانس لینا ضروری ہوتا ہے، یعنی بغیر سانس توڑے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہم کہیں پر وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں نا، لیکن اگر ہم نے اپنا سانس نہ توڑا تو یہ وقف پورا نہیں ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ مزید آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کو مزید اچھے سے سمجھنے کے لیے وقف کے کچھ قواعد ہیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ کیا ہوگا۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو وقف کے بھی طریقے بتائے نا، کہ کہاں کہاں پر کس کس صورت میں وقف ہو تو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، تو انہی کو ہی آج ہم تھوڑا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، قاعدہ نمبر 1 ہے وقف کے حوالے سے، جس کلمہ پر وقف کرنا ہو اگر اس کے آخری حرف پر 2 زبر کے علاوہ، ٹھیک ہے، 2 زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو تو اس حرف کو جزم دے کر سانس اور آواز دونوں ہی بند کرنی ہے۔ ہم وقف ایسے کرتے ہیں نا، اگر کہیں پر زبر زید پیش ہے، اسی طرح 2 زیر 2 پیش وغیرہ ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر حرف کو ساکن کرتے ہیں، ہے نا، جزم دے کے ساکن کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں وقف کی صورت میں ہم نے سانس بھی بند کرنا ہے اور آواز بھی بند کرنی ہے۔ جیسے یہ لفظ ہے مسدن، تو جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں مسد، ٹھیک ہے، مسد، یعنی ہمارا آواز بھی رک گئی یہاں پر مسدن سے مسد، اور اسی طرح یہاں پر ہم آگے جب ہم نے پڑھنا ہے تو یہاں پہ ہم سانس بھی توڑیں گے، ٹھیک ہے، یعنی رکنے میں اس طرح سے رکنا ہے کہ ہمارا سانس بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی بند ہو جائے۔ جیسے یہ مشق کے لیے کچھ کلمات دیے گئے ہیں، اگر ہم وقف نہ کریں پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، رب العالمین، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو پھر کیا ہوگا، زبر آ رہی ہے آخر پر، زبر ختم ہو جائے گی، زبر کو حذف کر کے ہم نون کو جزم دیں گے، پھر یہاں وقف کی صورت میں ہم آواز بھی توڑیں گے اور سانس بھی توڑیں گے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، رب العالمین، ٹھیک ہے، آواز بھی رک گئی، اور جب مزید آگے پڑھنا ہے تو ہم نے یہاں سانس بھی توڑ لی۔ یوم الدین وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
كفوا أحد حبل من مسد سحر مستمر. यहाँ रा मुशद्दद है ना, तो इसको थोड़ी सख्ती से पढ़ेंगे, मुस्तमिर, लेकिन पढ़ना हमने इसको बारीक है, क्योंकि हो तो वक्फ रहा है ना, वक्फ की सूरत में यहाँ पर इससे पहले जेर आ रही है, तो हम इसको बारीक ही पढ़ेंगे, क्योंकि वक्फ की सूरत में साकिन हो रही है ना, तो इस वजह से हम आरजी तौर पे सुकून आ रहा है, लेकिन इस सुकून से पहले कसरा है, जेर है, तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, बस मुशद्दद की वजह से थोड़ी सख्ती से पढ़ेंगे. सिहरुम मुस्तमिर. ठीक है, मजीद हम देखते हैं वक्फ का कायदा नंबर 2. वो क्या है? जिस कलिमा के आखिरी हर्फ पर 2 जबर हो, तो वहां हम एक जबर को अलिफ से बदलकर पढ़ते हैं. जैसे मिहादन है ना, मिहादन, यहाँ 2 जबर आ रहे हैं. जब हमने वक्फ किया तो क्या किया, 2 जबर को हम खत्म करके एक जबर को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं. तो हम मिहादन पर वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे मिहादा. ठीक है, यहाँ वक्त की सूरत में हम सांस भी तोड़ेंगे, आवाज भी बंद करेंगे, मिहादा. ठीक है, तो ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसकी समझ आई हुई है. तो ये मश्क के लिए कुछ कलिमात हैं, जैसे वल आदियाती ज़बहन, लेकिन वक्फ की सूरत में क्या करेंगे, ये जो 2 जबर हैं इसको हम एक जबर को अलिफ से बदलकर पढ़ेंगे, क्योंकि जब 2 जबर के बाद अलिफ होता है तो वो पढ़ने में नहीं आता, लेकिन वक्फ की सूरत में 2 जबर में से एक जबर हम हस्फ कर देते हैं, फिर वहां पर अलिफ जो होता है वो अलिफ मद्दा बन जाता है, तो वो फिर पढ़ते हैं. तो हम इसको पढ़ के देख लेते हैं. वल आदियाती ज़बहा फल्मुरियाती क़दहा فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به जमआ. ठीक है, फिर वक्फ का कायदा नंबर 3 क्या है, जिस कलिमा के आखिरी हर्फ पर गोल ता हो, तो वक्फ में हम उसको साकिन हा से बदल देते हैं. ठीक है, जज्म वाली हा से, यानी साकिन हा से बदल देते हैं. जैसे रहमतुन है, तो यहाँ वक्फ की सूरत में क्या पढ़ेंगे, रहमह. रहमतुन वक्फ किया तो रहमह. कोशिश करें जब हम गोल ता पर वक्फ करते हैं तो आखिर में जो साकिन हा है ना, इसका साउंड वाज़े होना चाहिए, सुनने वाले को समझ आनी चाहिए कि आपने इस हा को पढ़ा है. ठीक है, गोल ता को साकिन हा में अच्छे से बदलना है. ऐसा ना हो कि पढ़ने में हम रोहमा रोहमा यूं पढ़ लें कि उसका हा पढ़ने में आए ही ना, तो ये तो फिर लफ्ज टूट जाएगा ना, पूरा नहीं रहेगा, तो ये सही नहीं होगा. इसलिए जब भी गोल ता पर वक्फ हो, तो उस जब हम गोल ता पर वक्फ करते हैं, तो वक्फ की सूरत में जब उसे साकिन हा में बदलना है, तो उस साकिन हा का साउंड बहुत वाज़े होना चाहिए, रहमा. ठीक है, फिर ये मश्क के तौर पे कुछ कलिमात हैं. रहमा, गुड. तो आप इसके मश्क भी कीजिए. जी जी, माइक ओपन करें. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी, पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. राज़िया, जहां पर मरज़िया. देखिए ये 2 कलिमात है ना, यहाँ पे तो उन्होंने कहीं भी वक्फ का निशान नहीं लगाया, जहां वक्फ करना है बस वहीं पे पढ़ें. अच्छा अच्छा ठीक है. راضية مرضية सही. في आगे. عمد
في عمد ممددة आवाज नहीं आई मुझे هم आपके हाँ की। خير यहाँ पे आप इसको दोबारा पढ़ें, सही करें। في عمد ممددة देखें, फी अमदिम मुमद्ददा। आप ये बताइए, अभी मैंने पढ़ा, ممددة आपको मेरे हा की आवाज सुनाई दी, आखिरी हा की? जी जी मैम तो आपकी नहीं मुझे सुनाई दे रही, आपकी भी आनी चाहिए। दोबारा से पढ़ें। في عمد ممددة ممددة मुमद्ददा, ददा, क्योंकि जो ये हा होता ممددة है ना, ये वाला हा, इसका मखरज क्या है? हलक का वो हिस्सा जो सीने से मुत्तसिल होता है ना? तो इसमें आवाज जी जी थोड़ी भारी होती है, तो इसलिए सही करें इसको। ممددة अब पूरा पढ़ें। في عمد ممددة सही। आगे। هم خير البرية आगे। القارعة ما القارعة अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा के ना आपको कहा ठहर जाएं। القارعة हम्म ما القارعة सही। अच्छा, आपने ये पढ़ा ना, अल क़ारिअह मल क़ारिअह, थोड़ा सा आपकी रा में ना मजहूल पाया जा रहा है, मजहूल का अंसर आ रहा है। रा से री है ना, री, री, तो जी रे, रे की तरफ जा रहे हैं। इस पे जरा फोकस करके दोबारा पढ़ें। القارعة हम्म ما القارعة सही। ठीक है। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, जज़ाकल्लाह मैम वैयाक। आगे देखिए, सक्ता, सक्ता का बयान। अब सक्ता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सक्ता का माना भी है तो रुकना ही है, लेकिन वक्फ और सक्ता में कुछ फर्क है। कि सक्ता का मतलब है सांस लिए बगैर जरा सा रुकना, ठीक है? सांस लिए बगैर थोड़ी देर के लिए रुकना। वक्फ में क्या है? वक्फ में सांस भी टूटे, आवाज भी टूटे, ठीक है? लेकिन सक्ता में क्या होता है? सक्ता में ये होता है कि हम सांस तो लेते हैं, लेकिन सॉरी, रुकते तो हैं लेकिन सांस नहीं लेना, सांस जारी रहना चाहिए, सांस टूटना नहीं चाहिए। और फिर हमारी किराते, रिवायत हफ्स, जो हमारे कुरान है ना, हम जो पढ़ते हैं किरात, वो रिवायत हफ्स है, ठीक है? उसमें 4 जगह सक्ता करके पढ़ते हैं। तो वो 4 जगह कौन सी हैं ये आपको बता दी। ये देखिए, सबसे पहले ये है, सूरह कहफ में आता है, इवजन क़य्यिमा, ठीक है? ये इवजन है और ये क़य्यिमन है। तो यहाँ पर तो वक्फ है, ठीक है? यहाँ पर तो हम वक्फ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इवजन, अब इवजन ये सीन लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब है सक्ता करना है। तो हमने यहाँ पर सक्ता करना है। सक्ता ऐसा वक्फ होता है जहां पर हम ठहरते तो हैं लेकिन सांस नहीं टूटता। अब चूंकि इवाजन है ना, आखिर पे तनवीन है, लेकिन रुकने की वजह से तनवीन खत्म हो जाएगी, ठीक है? रुकने की वजह से तनवीन खत्म हो जाएगी। वक्फ होगा ना, सक्ता भी वक्फ ही होता है। बस वक्फ और सक्ता में फर्क ये है, वक्फ में सांस भी टूटता है, सक्ता में सांस जारी रहता है। इसलिए है तो वक्फ है, तो इसलिए हम यहाँ पर तनवीन को खत्म करेंगे। 2 जबर की तनवीन है ना, तो अभी पीछे पढ़ा कि जब 2 जबर पर वक्फ करते हैं तो वहां पर हम उसे एक अलिफ से बदल कर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही वक्फ करेंगे सक्ता की सूरत में। तो हम इसको पढ़ेंगे इवज क़य्यिमा, ठीक है? यानी यहाँ पर सांस नहीं टूटना चाहिए, वक्फ हो लेकिन सांस ना टूटे। इवज,
क़य्यिमा, यहाँ तो फिर वक्फ भी है और वक्फ है यहाँ पे, ठीक है। यही यानी यहाँ पर सांस भी टूटेगा, आवाज भी। इसी तरह यहाँ पर देखें, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमा, ठीक है। दूसरी जगह यहाँ पर है मरक़दिना हादा, असल में ये भी मरक़दी नन था, ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पर मरक़दी ना है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने सकता ही करना है, यहाँ मीम भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ मीम भी आ रहा है ना, इसका मतलब है हम यहाँ पर वक्फ भी कर सकते हैं और सकता भी कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर आवाज और सांस दोनों ही तोड़ भी सकते हैं और सांस लिए बगैर वक्फ भी कर सकते हैं। फिर हम इसको कैसे पढ़ते हैं, मरक़दिना हादा, मरक़दिना हादा, ठीक है। सकता क्या है, सांस लिए बगैर वक्फ करना, इसको कहते हैं सकता। फिर इसको पीछे से मिला के मरक़दिना को आयत के पीछे वाले हिस्से से, मतलब हम रवानी में पढ़ रहे हों तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने कैसे पढ़ना है। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हादा, ठीक है। फिर तीसरी जगह मन रॉक, वैसे तो हमने ये पढ़ा था नून साकिन के बाद अगर रॉ आए तो नून की पूरी आवाज रा में मुदगम हो जाती है ना, तो उसी हिसाब से ही बन जाते हैं मर रॉ। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना, यहाँ पर सकता है, यानी वक्त तो है लेकिन आवाज नहीं टूटनी चाहिए, सांस नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे मन रॉक, यानी यहाँ पर हम ठहरेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, मन रॉक, मन रॉक। फिर पीछे से पढ़ते आए तो हमें रवानी में भी पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। वक़ील मन रॉक, ठीक है। बस इतना सा ही रुकना है, ज्यादा देर नहीं रुकना, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, सांस लिए बगैर जरा रुक जाना, बस चंद लम्हे ही रुकना है, ज्यादा देर नहीं रुकना, वरना ये सकता खराब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है बल रौना, बल रौना। ऐसा भी होता है कि करीबुल मखरज हुरूफ हों, ठीक है, करीबुल मखरज हुरूफ हों, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो उनका भी इदगाम हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ बल पर सकता करेंगे, इसलिए हम बल पर ठहरते वक्त सांस नहीं तोड़ेंगे और इसे आगे नहीं मिला के पढ़ेंगे। बल रौन, कैसे, बल रौन, सांस नहीं तोड़ना। फिर रवानी में पढ़ते हुए भी हमें याद रहना चाहिए कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। कल्ला बल रौन अला कुलूबिहिम, कल्ला बल रौन अला कुलूबिहिम, ठीक है। दोबारा से जरा हम वक्फ और सकता को देख लेते हैं कि सकता का हुक्म है तो वक्फ जैसा ही, मगर दोनों में फर्क क्या है। वक्फ में कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस लेकर ठहर जाते हैं, जबकि सकता में सांस नहीं लेते। इसलिए सूरह कहफ वाली जगह में सकता इस तरह करें, इवाजा यानी दो जबर की तनवीन को अलिफ से बदल दें। इसी तरह मन रॉक, इसमें भी मन के नून को साकिन पढ़कर सकता करें, आगे राकिन में ना मिलाएं। और यही सूरत बल राना, ठीक है, बल राना, इसमें भी ऐसे ही है, यानी बल को, बल के लाम को रा में नहीं मिलाना,
بلکہ یہاں پر رکنا ہے سکتہ کے طور پر. اور کیا ہے کہ پہلے دو موقعوں پر وقف کرنا بھی جائز ہے. کون سے دو موقع تھے؟ ایک تو یہ سورۃ کہف والا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، یعنی عوجا، اور پھر یہاں پہ سانس لے کے سانس توڑ بھی سکتے ہیں، رک کر سانس توڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عوجا قیما، جیسے یہاں بھی بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں پر یہ 4 جگہیں بتائی ہیں جہاں پر سکتہ ہوتا ہے، ان میں سے عوجن قیما، اس پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی، ٹھیک ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ ایواجن تھا، وقف کیا تو ایوا جا ہی پڑھیں گے، سکتہ کیا تو بھی ایوا جا ہی پڑھیں گے. فرق یہ ہوگا اگر ہم سکتہ کر رہے ہیں پھر ہم ایوا جا پڑھ کے سانس نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر عیوا جا پڑھ کے ہم رک جائیں گے، سانس بھی توڑ لیں گے. اور یہاں بھی ایسے ہی مرقدینا میں بھی ایسے. لیکن یہاں پر من روق بل رونا، یہاں صرف اور صرف سکتہ ہی ہے. یہی ہمارا آج کا سبق ہے، وقف اور سکتہ میں فرق. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آگئی ہوگی. باقی انشاءاللہ مزید آپ اس کی پریکٹس کریں، مزید کلیئر ہو جائے گا. بارک اللہ فیکم اجمعین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.